गुलशने बहरे अगर जुए मैं सुगन न हो, गुलशने बहरे अगर जुए मैं सुगन न हो, फूल न हो, कली न हो, सब्जा न हो, चमन न हो। तो आजकल हमारे जो दोस्त अपने चमन और बैकयार्ड लैंडस्केपिंग करवा रहे हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि कुछ इस चमन का भी ख्याल करें। उस चमन में हम जाएंगे कभी जब कंप्लीट हो जाएगा। इमरान हो गया। To read to you something very short from our favorite poet Faiz Ahmed Faiz. Imran and I really enjoy his poetry. This is something which has been rendered beautifully by Tina Sani. So, Faiz specialist. बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, जी। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकानें, तुंद हैं शोले, सुर्ख हैं आहन, खुलने लगे हैं कुफलों के दहाने, फैला है हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल से गुजरती है कह सकने भी नहीं। तो अभी मौका मिला है, पैरी साहब आइए, जो कुछ तो इस तरह टूटे जैसे हाथों से गिर के पत्थर पे कोई शफाफ आईना टूटे, जैसे पलकों से टूटा आंसू, जैसे सीने में एक कमा टूटे, जैसे उम्मीद की नाजुक डाली बर्ग मौसम में नागहां टूटे, जैसे आँखों में ख्वाब की डोरी वक्त तकमील से उलझ जाए, जैसे पैरों तले ज़मीन निकले, जैसे सर पे ये आसमां टूटे, जैसे एक शाख पे भरोसा किया उस पे जितने थे आशियाँ टूटे, जैसे वहशत से होश आ जाए, जैसे तादेर में देहां टूटे। अब जो रेज़ा हुए तो सोचते हैं किसने देख। एक और अहमद फराज साहब के कलाम है, दिस वॉज हिज लास्ट गज़ल दैट ही एवर रोट। गमे हयात का झगड़ा मिटा रहा है कोई, चले आओ कि दुनिया से जा रहा है कोई, अज़ल से कह दो कि रुक जाए दो घड़ी, सुना है आने का वादा निभा रहा है कोई। वो इस नाज से बैठे हैं लाश के पास, जैसे रूठे हुए कोई मना रहा है कोई, पलट कर ना आ जाए फिर सांस नब्ज़ों में, इतने हंसी हाथों से मैयत सजा रहा है कोई। थैंक यू। It's an English translation of Pablo Neruda. He's known as one of the greatest poets. He was born in 1904, died in 1973. And he was a revolutionary, a diplomat, and some of the writings that he's written has been translated in almost all languages. Here I'll use the English language to render his poetry. Tonight I Can Write is the name of the poem. Tonight I can write the saddest lines. Write, for example, the night is starry, and the stars are blue and shiver in the distance. The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, and sometimes she loved me too. Through nights like this one, I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me. Sometimes I loved her too.
How could one not have loved her great still eyes? Tonight I can write the saddest lines. To think that I do not have her, to feel that I have lost her, to hear the immense night still more immense without her, and the verse falls to the soul like a dew to the pasture. What does it matter that my love could not keep her? The night is starry and she's not with me. This is all. In the distance, someone is singing in the distance. My soul is not satisfied that it has lost her. My sight tries to find her as though to bring her closer. My heart looks for her and she's not with me. The same night, whitening the same trees. We of that time are no longer the same. I no longer love her, and that's certain. But how I loved her. My voice tried to find the wind to touch her hearing. Another's she'll be another's, as she was before my kisses. Her voice, her bright body, her infinite eyes. I no longer love her, that's certain. But maybe I love her. Love is so short, forgetting so long. Because through nights like this one, I held her in my arms. My soul is not satisfied that it has lost her. Though this be the last pain that she makes me suffer, and these the last verses that I write for her. Tonight, I can write the saddest lines. Thank you. Though this be the last pain that she makes me suffer, and these the last verses that I write for her. Tonight, I can write the saddest lines. Thank you. You have the right to upload. जीनते महफिले अरबाब सुखन काम अमीर के बामे रही रौनके बसरे शोरा मेरे गान। तो देखते हैं इसकी बात कितनी रौनक रहती है। अली और मोना। जब मुझे बताया गया कि आज शायरी की महफिल है, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हेलो हाँ, अभी आवाज़ आ रही? तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये कलाम कहाँ से हासिल किया जाए। तो किसी ने कहा कि आपके नेबरहुड में तो उस्ताद रहते हैं, उस्ताद तो उन्होंने तो बताया गया कि आपके मोहल्ले में उस्ताद जमाल हत्तानवी रहते हैं, जिनका आपको पता होगा कि इनका ताल्लुक़ जो है हत्तान घराने से है, और सब लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। तो मुझे खुद ही कुछ कोशिश करनी पड़ी। फिर मुश्किल ये हुई कि किसका कलाम पढ़ा जाए। तो फिर ख्याल आया कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। तो एक गालिब का कलाम अर्ज़ है, नज़र भी आया यार। अर्ज़ है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। न शोले में ये करिश्मा, न बर्क़ में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक़ तुंदुखू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन हमसे, वगरना खौफ़े बदामूज़ी अदा क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज़ जिसके लिए हमको बहिश्त अजीज़, सिवाय बादे गुल्फा में मुश्कबू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार और हो भी तो किस उम्मीद पर कहिए कि आरजू क्या है। बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। जाते जाते मैं आपने शायद वो खबर सुनी होगी, एक शायर इस वक्त अमेरिकन हॉस्पिटल में हैं और कुछ ये शेर उन्होंने कहा था अपनी घरवाली के लिए कि जब से ऐनक लगी है नज़र वाली, कितनी बुरी लगने लगी है घरवाली। तो आप इस वक्त जो है वो अमेरिकन हॉस्पिटल में हैं। वो शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ सॉरी। एक गजल की बात कही, एक लॉन्ग बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं।